Okay, so today we'll be starting with the concept of instantaneous axis of rotation. I have done pure rolling last time. Today, the topic will be 12.10, axis of rotation. It is also termed as IAOR, instantaneous axis of rotation. बराबर से ध्यान देना. It is very, very important. Now, please pay attention over here, beta. Please pay attention over here. See, last time we had discussed pure rolling. In pure rolling, as I told you, that this body is going with VCM, center of mass, and this body is going with omega. And if this body is kept on the ground, stationary ground, then I can say the velocity over here will be VCM, and this tangential velocity is going to become R omega, but this velocity will become equal to 0 because it is with respect to ground, it has to be at rest. That means VCM should become equal to R omega. This point is at 0 velocity, means point of contact is at rest with respect to ground. So as I told you, the velocity profile will be this way. It will be 2 VCM, middle will be VCM, and ground will be 0. Studied this last time. Now, can this body be written like this? That can I write pure rolling as I can provide a hinge over here, and I can say that at the hinge, this body is rotating about this axis. We are imagining, this is hypothetical concept, but the answer will be the same. Now, if you know that this will be the instantaneous axis of rotation, this point is instantaneous axis of rotation. So can I say every point on this body is undergoing circular motion? Yes, sir. Can anyone tell me what is the velocity of this point then, with respect to this axis of rotation? Hello? This distance is r, no? So the velocity of this point with respect to this axis of rotation will become r omega. Hello? Yes, sir. And this point का velocity कितना रहेगा? 2r omega. 2r omega. But I know VCM is r omega, so this is 2 VCM. This is VCM. Similarly, if I pick up any damn point, if I pick up this point, this point will undergo this circle, right? So this point ka velocity will become root 2 r omega. That is root 2 VCM. Similarly, if I take this point, this will undergo this kind of circle. So this will also be root 2 VCM. That is root 2 r omega. So by considering this axis of rotation, you will get the same answer as that of pure rolling which was done last time. Hello. अगर ये concept आपको आता भी नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, because you can solve by the previous method. You can solve by 12.9. Hello. समझ में आ रहा है क्या?
Yes, sir. बट आपका थोड़ा जिंदगी आसान कर देगा ये मेथड। ठीक है, आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ लिया on a stationary ground, on a stationary ground, the ground cannot be accelerated. अगर ये ground accelerated है तो ये मेथड चलेगा नहीं, फिर आपको सूडो फोर्सेस हर पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, दैट विल बी अ डिफरेंट डिफिकल्ट मेथड। तो ये मेथड कब ज्यादातर काम का है, जब ग्राउंड रेस्ट पर है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मेथड है ये। जी का एक क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको 3 पॉइंट्स दिया था, पी सी एंड क्यू, एंड बोला था कि दिस बॉडी इज रोलिंग ऑन अ स्टेशनरी ग्राउंड। किस पॉइंट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, क्यू सी पी। यस, किस पॉइंट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, Q. क्यों ना, बिकॉज इफ आई कंसिडर दिस टू बी द हिंज, ये डिस्टेंस कम है ना, तो इसका आर ओमेगा कम रहेगा, इसका आर ओमेगा ज्यादा रहेगा, एंड इसका आर ओमेगा सबसे ज्यादा रहेगा। यू कैन सी ना, इजी है एकदम। सो वी क्यू विल बी ग्रेटर देन वी सी विल बी ग्रेटर देन वी पी। So this is just by looking instantaneous axis of rotation you can find that जिसका r सबसे ज्यादा है उसका वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा रहेगा। Okay, fine. Now we'll do some sums based on this thing so that we can start. Or again I am telling you, you can do this by the previous method also. ये मेथड थोड़ा आसान बना देगा आपकी लाइफ को, ऐसा नहीं है कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। इट इज 12.9, क्वेश्चन नंबर 1। A disk is rolling without slipping with the linear velocity v as shown in the figure. With the concept of instantaneous axis of rotation, find the velocity of ABCD. एकदम easy है। Instantaneous axis of rotation मतलब ये पॉइंट को आपने हिंज पकड़ लिया, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी तो जीरो हो गया। इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर v है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना रहेगा, अभी अभी सब किया ना बेटा हम लोग ने, कितना रहेगा 2v। 2V. इस पॉइंट का वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा, इट इज रूट 2v। और इस पॉइंट का वेलोसिटी अगेन रूट 2v। हेलो, एंड इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो, यस और नो, ये ओमेगा से घूम रहा है। So this is again the same thing, and I know that VCM should become equal to R omega. That is V is equal to R omega, but VCM is R omega. ये चीज ठीक है। We are at the end of rotational motion। देखते ही देखते rotational motion भी खत्म हो गया। आपको concepts बहुत strongly आना चाहिए। इसलिए introductory exercise plays a very very important role। Question number 2 पर आता है इसके। Question 2 it is. A solid sphere is rolling without slipping. Prove that हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई सी ओमेगा स्क्वायर इज आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। एकदम इजी है, देखो मेरी बात सुनो, दो चीज। कैन आई राइट दिस एज वी सी एम एंड ओमेगा, ये प्रीवियस मेथड। तो इसका काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का क्या रहेगा, हाफ एम वी सी एम द होल स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। आई सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, कौन सा बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, यू कैन सी इट इज सॉलिड स्फीयर ना। तो कैन आई राइट दिस एज, याद है ना ये प्रूफ होके क्या बनता था, हाफ एम वी सी एम द होल स्क्वायर। रिमेंबर इट वाज कमिंग टू 1 plus k square by r square, याद है इसका रिडक्शन। Yes, sir. What is k square by r square for a solid sphere? 2 by 5. 2 by 5 था coefficient, तो 1 plus 2 by 5 7 by 5, so it will become 7 by 10 बाहर MVCM the whole square। I hope you all are understanding this part 1। This is case 1।
दिस इज प्योर रोलिंग वे, ये चल रहा भी है घूम रहा भी है। अभी केस 2 में क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये तो हमने कर लिया है, देखो ना ये केस 1 है, ये केस 1 है और ये केस 2। केस 2 में हमको क्या करना है, हमको इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना और आंसर सेम आना चाहिए। मतलब हमने ये पॉइंट को हिंज कर दिया एंड कैन आई से ये पॉइंट पे ये घूम रहा है, तो इसके पास कौन सा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, सिर्फ रोटेशन वाला, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट आई विल बी अबाउट दिस पॉइंट एंड लेट दिस पॉइंट बी ओ, दिस इज आई ओमेगा स्क्वायर। So can I say this is moment of inertia of the sphere about the tangent? हेलो यार, ये एक्सिस है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, बोलो। ये पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? अबाउट द टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? शॉर्टकट फॉर्मूला, इट इज IC प्लस MR स्क्वायर, याद आ रहा है? Yes, sir. हेलो मैन, एंड IC इज 2/5, 2/5 प्लस MR स्क्वायर इज 7/5 MR स्क्वायर, तो I नॉट क्या हो जाएगा? 7/5 MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, so this will become 7/10 M R omega square, but VCM is R omega. हेलो देखो ना, ये आंसर मैच किया ना? हेलो, यस और नो? दैट मींस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ देम इज गोइंग टू रिजल्ट इन द सेम आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, सही है ना? So I have a doubt. बोलो बेटा। So in this sphere that is rolling, can we assume any point to be the instantaneous axis of rotation or only the bottommost point? एक्सिस ऑफ रोटेशन का डेफिनेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट है जिसका पास कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं होती है। हेलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होती है जिसके पास कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं होती है ना, देखो ना बाकी सब सर्कल में जा रहा है, बट इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? 0. 0 है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही पॉइंट होती है जिसका v 0 होता है। अब वो तो कोई भी पॉइंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन, बट यहाँ पर तो ग्राउंड है ना जिसका v 0 है इंस्टेंटेनियसली। हेलो, Yes, sir. ये पॉइंट ही है ना, नहीं और कोई पॉइंट है ही नहीं जिसके पास v 0 होगा, तो इसलिए हमने ये पॉइंट को IAOR पकड़ लिया ना। ऐसे तो कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, गेटिंग इट? Yes, sir. तो v 0 होना चाहिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी आर starting with 12.11. 12.11 is there, is very important, 12.11। फिर बाद में इम्पल्स तो आता ही है आपको। इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, सही है। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग कब लगेगा? मैं आपको एक थोड़ा सी शॉर्टकट बता देता हूँ। तब एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड। अब तक पुराने प्योर रोलिंग में हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई VCM वो आर ओमेगा, ये VCM था यानी ओमेगा। Was there any external force applied in this condition? बाबा हेलो, नो ना? No, sir. क्या फ्रिक्शन था? क्या फ्रिक्शन था जमीन पर? नहीं था, बिकॉज बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पर है ना, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन ना।
Hello. Yes, sir. There is no relative motion, so friction is also absent. Friction does not act. Okay, so it is never going to be accelerated. V is r omega करता रहेगा, तो हमको फर्क नहीं पड़ता है कि जमीन चाहे स्मूथ हो कि रफ हो, बिकॉज फ्रिक्शन का कुछ काम ही नहीं है. फ्रिक्शन इज ऑन हॉलिडे. VCM is r omega. This is normal pure rolling. This is normal pure rolling. Accelerated pure rolling नहीं है. Okay, this is normal pure rolling, याद रखना. अब सपोज हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, ध्यान से अभी इधर. अच्छा, ये फोर्स के कारण क्या होगा? ये फोर्स के कारण this VCM will change at every instant. हेलो 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 हेलो, बोलो ना. Yes, sir. ये जो VCM था ना, ये जो VCM था, ये जो VCM है, ये फोर्स के कारण ACM में बदल जाएगा. क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? बिकॉज फोर्स विल गिव राइज टू एक्सेलरेशन. तो VCM विल चेंज एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब इट विल बी dVCM/dt. बराबर क्या? अच्छा, बट प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि at VCM at every instant should become r omega. हेलो 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 हेलो. Yes, sir. at every instant VCM should become r omega. ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि VCM is r omega होना चाहिए at every instant, but VCM तो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है हर इंस्टेंट पर. तो कैन आई टेक डेरिवेटिव हियर? कैन आई टेक डेरिवेटिव ऑन दिस साइड आल्सो बेटा? तो अगर ये साइड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आगे वाली चीज भी चेंज होना चाहिए. तो ताकि VCM शुड बी r ओमेगा एट एवरी इंस्टेंट, तो ये dVCM/dt फिजिक्स के मुताबिक ACM होता है और ये r अल्फा होता है. बराबर है क्या? दैट मींस एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग का कंडीशन ये है कि ACM शुड बिकम r अल्फा. ACM विल बिकम r अल्फा. अभी यहां पर फ्रिक्शन भी आ जाएगा. अच्छा, फ्रिक्शन आए कि ना आए, दैट विल आल्सो डिपेंड. अगर ACM इज r अल्फा इसी फोर्स से सेटिस्फाई हो रहा है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा. हेलो, अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर यही बड़ा फोर्स जो है ना, बड़ा है, वही काम कर रहा है ACM इज r अल्फा में, तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई मेरा तो हॉलिडे है, आप खुद ही अपना काम कर रहे हो ACM इज r अल्फा में, तो मुझे कोई आने का टेंशन नहीं है. यस और नो? Yes, बट sir. अगर ये फ्रिक्शन, अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो काफी नहीं है ताकि वो ACM इज r अल्फा बना पाए, तो फ्रिक्शन आएगा. अच्छा, फ्रिक्शन किधर आएगा? फ्रिक्शन कैन बी हियर आल्सो, फ्रिक्शन कैन बी हियर आल्सो, और फ्रिक्शन कैन बी जीरो आल्सो. हेलो, फ्रिक्शन आगे भी आ सकता है, फ्रिक्शन पीछे भी आ सकता है, फ्रिक्शन नहीं भी आ सकता है. दैट विल डिपेंड कि भाई ये फोर्स कितना काम कर रहा है. हेलो, समझ आ रहा है ना बेटा? क्लियर है ना? Sir. हाँ, ये चीज है. ये फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन दिस फोर्स, दैट विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द फोर्स, कि फोर्स ऊपर लगाए कि बीच में लगाए कि नीचे लगाए. मैं अभी एक थोड़ा सी डेरिवेशन करता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए. I hope you all are understanding the most important part of your rotational motion, that is called as accelerated pure rolling, because people get confused in this only. अच्छा, I'll do the proof now. Pay attention, और ये proof याद रखना, इसका रिजल्ट याद रखना. बहुत सारे चीजों में ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. ये अगर मैंने फोर्स लगाया, उसके कारण ACM आएगा. अल्फा ऐसे ही होना चाहिए, बिकॉज जैसे VCM इज r ओमेगा का डायरेक्शन है, वैसे ही डायरेक्शन मैच करना चाहिए. सपोज फ्रिक्शन को मैंने आगे पकड़ लिया, अज्यूम, ये पता नहीं है, मैंने अज्यूम कर लिया कि फ्रिक्शन आगे है. हेलो, बोलो ना भाई, करेक्ट है ना बेटा? Yes, मैंने sir. अज्यूम कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. अजम्पशन है, आपको मालूम है पूरा फिजिक्स में कि माइनस आया प्लस आया, दैट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन. देखते हैं हम लोग. चलो, अभी मैं सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखूंगा? एफ नेट इज एम ए. हेलो,
एफ नेट इज एम ए, कैन आई से बड़ो एफ प्लस छोटो एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, बट ए को लिख सकते हैं एसीएम। यस और नो? Yes, sir. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? अबाउट द सेंटर ले लो, torque about the center. Torque you can consider about any point, but I am taking torque about the center. Who is providing torque? ये जो टॉर्क बना रहा है वो कैसे बना रहा है? ऐसे बना रहा है, और ये टॉर्क उल्टा बना रहा है ना इसका। तो कैन आई से बड़ो एफ इंटू आर माइनस छोटो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हेलो, सेकेंड Yes, वाला। sir. और तीसरा वाला कंडीशन प्योर रोलिंग के लिए, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग के लिए, that is ACM should become equal to R alpha। अब मैं काम करता हूँ, ACM यहाँ से ले लेता हूँ, ACM यहाँ से मिलेगा बड़ो एफ प्लस छोटो एफ बाई एम, और अल्फा अल्फा यहाँ से ले लेता हूँ, विल बिकम बड़ो एफ माइनस छोटो एफ इंटू आर अपॉन आई। यस और नो? सही है ना? तो यहाँ से अगर आपने छोटो एफ का वैल्यू निकाला, प्रूफ दिया हुआ है डीसी पांडे में, आई एम जस्ट प्रूविंग द रिजल्ट ओवर हियर, विल बी एम आर स्क्वायर माइनस आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू कैपिटल एफ। ये रिजल्ट मुझे आया, ठीक है। This is only applicable when the force is applied at the topmost point, because तो ही तो F into R बनेगा। हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है? जब फोर्स इज अप्लाइड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा केसेस करते हैं, देखो जरा। केस 1, सपोज रिंग का कंडीशन करते हैं, रिंग का आई कितना होता है अबाउट द R सेंटर? square. फ्रिक्शन कितना आ जाएगा इस वैल्यू डालेंगे तो, इसमें इस बॉक्स में डालेंगे तो 0 आएगा, दिख रहा है क्या? हेलो, मतलब कैन आई से फ्रिक्शन में ये कैपिटल एफ ही काफी है, छोटा एफ की जरूरत नहीं है। छोटे एफ को बोलेगा भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं ही काम कर दूंगा। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. केस 2, सपोज मैं इसको डिस्क पकड़ता हूँ, या मैं पकड़ता हूँ आई इज लेस देन एम आर स्क्वायर, मतलब चाहे डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, तो आई इज लेस देन एम आर स्क्वायर। अच्छा, इफ आई इज लेस देन एम आर स्क्वायर, कैन आई से एफ विल कम पॉजिटिव? हेलो, वैल्यू डाल के देखो ना इसमें यार। हेलो 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 हेलो, यस और नो? एफ पॉजिटिव आएगा ना? यस सर। Yes, sir. एफ अगर पॉजिटिव आया मतलब जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया था आगे, वही डायरेक्शन आएगा। हेलो, जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया था ना आगे, वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे ही है। अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन नेगेटिव आता मतलब फ्रिक्शन पीछे होता। हेलो, यस और नो? ये चीज है, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग आपको समझ में आ जाए, एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल when force is applied at the topmost point. I hope I'm making it very much clear। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। और अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अप्लाई नहीं किया गया है, कोई दूसरी पॉइंट पे अप्लाई किया गया है, तो आपको ये प्रूफ फिर से करना पड़ेगा। हेलो, क्योंकि आर परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ना, वो जैसे वो सम आएगा वैसे मैं सिखा दूंगा, बट अभी फिलहाल आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है। एम आर स्क्वायर माइनस आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू एफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर, कि भाई अगर एसीएम ऐसे है ना, तो अल्फा का डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए, बराबर है क्या? देन ओनली एसीएम विल बिकम आर अल्फा ना। हेलो, Yes, sir. and if ACM is R alpha, that means net acceleration of this point is 0. ये अच्छा, अगर या तो ऐसे भी हो सकता है,
अगर ACM ऐसे है तो अल्फा ऐसे होना चाहिए, बराबर है ना, ये चलेगा। दिस इज प्योर रूलिंग, एक्सेलरेटेड प्योर रूलिंग। बट अगर आप बोलेंगे कि ऐसे है ACM, एंड अल्फा ऐसे है, और अगर ACM इज आर अल्फा इधर भी हुआ, इज दिस प्योर रोलिंग ओवर? नो APR। भाई इधर मैच करना चाहिए ना, इधर तो ACM एंड आर अल्फा एक ही डायरेक्शन में ना, यस और नो? हेलो 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 यार, एकदम इजी इजी बातें बता रहा Yes, हूँ। sir. ओके, इफ यू अंडरस्टैंड देन इट इज वेरी मच फाइन। अच्छा और बात करता है, चलो इधर आ जाओ। इंक्लाइन प्लेन है, कोई बता सकता है इसको नीचे लेके जाने के लिए कौन सा एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ही है, मतलब है ही फ्री में, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स G है? sin theta. हमेशा है ही, ये सेंटर पे लग रहा है। कैन एनीवन टेल मी? तो ये तो हमारा ACM का काम कर देगा, देखो ना, ये एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग के कंडीशन में आ गया ना, बिकॉज ये एक्सटर्नल फोर्स बन गया ना मेरा। हेलो, ऐसा नो, तो ACM के कंडीशन में आ गया। ACM ऐसे होना चाहिए और अल्फा ऐसे होना चाहिए, क्या मानते हो? कैन यू टेल मी हाउ मच इज mg sin थीटा का टॉर्क अबाउट द सेंटर? mg sin थीटा का टॉर्क कितना है सेंटर पे? 0. 0 है, बिकॉज वो खुद ही सेंटर पे है। तो फ्रिक्शन कहां पर आएगा, कोई बता सकता है फ्रिक्शन कहां पर आएगा? कंपल्सरीली फ्रिक्शन किधर आना चाहिए, ऊपर के नीचे? अब ऊपर के डायरेक्शन में कि नीचे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा, बट फ्रिक्शन कंपल्सरीली कौन सा डायरेक्शन में आएगा? कहना से इधर ही आएगा, ताकि वो टॉर्क ऐसे बना पाए, ताकि अल्फा ऐसे आ जाए। हेलो 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 हेलो, Yes, ये sir. कि अल्फा का बनाने वाला कोई नहीं है, अल्फा की जिम्मेदारी सिर्फ एफ को दी गई है, छोटे एफ को। हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेंगे ना? तो ये जो एफ है ना, it is going to produce a torque this way, and then only pure rolling will take place at every instant. तो मतलब inclined plane play friction is always upward। यहाँ पर हम लोग एक on an inclined plane friction is always upward, हाँ? ये याद रखना बेटा प्लीज, जो भी है क्लियर है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, चलो इधर आ जाओ। चलो अब बताओ फ्रिक्शन कहाँ पर आएगा जमीन पर, अगर इसको प्योर रोलिंग करवाना है तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, आगे पीछे? Left. लेफ्ट की तरफ आएगा, इधर आएगा। ताकि ये तो ए बना तो पाए, ACM तो बना पाएंगे, अल्फा बनाने के लिए इसको टॉर्क ऐसे बनाना चाहिए ना, बिकॉज इसका टॉर्क तो 0 है। हेलो, यस और नो? तो ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? अब थोड़ा और बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा और करते हैं, ध्यान दो। ये है, सपोज एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और मुझे प्योर रोलिंग चाहिए, मतलब ACM चाहिए और अल्फा। अब बोलो, अब बोलो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? हम्म? देखो, देखो मेरी बात सुनो, ये एफ तो काफी ACM तो बना ही देगा, बट ये एफ का टॉर्क कैसे है? ये एफ का टॉर्क अबाउट द सेंटर कैसे है? Anti-clockwise. ऐसे है ना, बट हमको पूरा रिजल्टेंट अल्फा उल्टा चाहिए। हेलो Yes, हेलो, sir. तो दैट मींस फ्रिक्शन विल डोमिनेट एंड फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस द अल्फा दिस डायरेक्शन में। हेलो हेलो हेलो, बिकॉज रिजल्टेंट अल्फा तो आपको ऐसे मांगता है ना। हेलो, ये तो नहीं बनाएगा,
ये बनाएगा पूरा अल्फा, गेटिंग इट? यस और नो? फ्रिक्शन पीछे की तरफ Yes, आएगा, sir. बिकॉज रिजल्टेंट एसीएम का आर अल्फा आपको क्लॉकवाइज मांगता है, so friction has to dominate with clockwise, then only the resultant alpha will be clockwise. So I hope I have made the concepts very much clear. अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें. I am discussing rolling on a rough inclined plane. Rolling on a rough inclined plane. ध्यान देना, इसको रिवाइज प्लीज कर लेना. एंड फ्राइडे को आई फिनिश ऑफ दिस विद एंगुलर इंपल्स एंड टॉपलिंग, एंड आपके जितने भी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेज है उससे ही टेस्ट बनेगा, पार्टली तो टेस्ट होगा. And then next week I'll be solving the objective and the subjective and the chapter will get over. उसके बाद में हम लोग gravitation शुरू करेंगे. So suppose this is the inclined plane. ध्यान देना, I'm deriving a lot of results over here. And this is a body. I know that mg sin theta will be down. पढ़ लिया था अभी. Friction is gonna get act upwards. That is mu n ना. And हमको तो मालूम है कि ACM should become R alpha. ठीक है भाई. Can anyone tell me how much is the acceleration? एक काम करते हैं, इसको फ्रिक्शन को F ही रहने दो, F फाइंड करना पड़ेगा ना. Can you tell me what is the ACM? mg sin theta नीचे minus F ऊपर by net force और total mass. And alpha कौन बनाएगा? Alpha will be tau by I. That tau is छोटो f into r by I. Hello बाबा, yes or no? And I know that ACM should become R alpha. जो हमने पुराना डेरिवेशन किया था वही डेरिवेशन हम यहाँ पर भी कर रहे हैं. यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ? दिस विल बी mg sin theta minus f by m is r into alpha. Alpha is f into r by I. तो यहाँ से छोटो f आपको मिलेगा, जो आपको रट्टा मारना है, दैट विल बी mg sin theta अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर. अच्छा, r स्क्वायर बाई k स्क्वायर आया कहाँ से? मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या पकड़ लिया? m k स्क्वायर. यस और नो? हेलो Yes, sir. हेलो. तो देखो ना, m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये जो m है और ये m कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर का r स्क्वायर, ये k स्क्वायर और रीशफलिंग करेंगे तो ये आएगा. दिस हैज टू बी लर्न बाय हार्ट. हाँ, ये पोलर बहुत इंपॉर्टेंट है. mg sin theta upon 1 plus r square by k square. You know what is k square by r square? Is the coefficient. उसका उल्टा, it is not k square by r square. ध्यान रखना, it is r square by k square. सिमिलरली एक बार f मिल गया आपको, f को वैल्यू ACM में डालो तो ACM का वैल्यू आपको मिलेगा. It will be g sin theta upon 1 plus k square by r square. सेकेंड प्रूफ बराबर है, ध्यान रखो. अच्छा, और बात, कैन आई से बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगा तो विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू विच एनर्जी? कैन आई से हाइट पकड़ लो E to h. P. कैन आई से mgh is converted into rolling, half mvcm the whole square 1 plus k square by r square. मालूम है ना सबको? रोलिंग है भाई ये. m और m तो कैंसिल हो जाएगा, तो vcm का वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट 2gh 1 plus k square by r square. थर्ड रिजल्ट which is very important. अच्छा, और एक बात,
अच्छा ये जो फ्रिक्शन है, ये कौन सा फ्रिक्शन है? दिस इज द फ्रिक्शन एक्टिंग, बराबर क्या? अच्छा ये फ्रिक्शन किससे कम होना चाहिए? ये फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए ना। हेलो 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 हेलो, यार ये जो फ्रिक्शन है ना, कैन आई से दिस शुड बी लेसर देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा? सर मैं क्या बोल रहा हूँ यार, फ्रिक्शन एक्टिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू maximum friction provided, maximum friction on the ground. Hello hello hello, yes or no? So, but kinetic friction is a constant value, right? काइनेटिक नहीं है बेटा, ये जो वैल्यू है, ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये कॉन्सेप्ट में कौन सा पॉइंट है, कौन सा फ्रिक्शन है? कोई बता सकता है कौन सा फ्रिक्शन है? ये इज नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा. So, if it's pure rolling, it'll be static, but it's not yet pure rolling, right? No, at every instant it is pure rolling. At every instant VCM is R omega. हेलो हेलो, बराबर है ना? At every instant of time VCM should become R omega. So at every instant the point of contact should be at rest with respect to the ground. हेलो क्या बोल रहा हूं मैं? सही है ना? सोच के देखो. At every instant VCM should become R omega. इसके लिए d by dt of VCM is d by dt of R omega. Therefore ACM is R omega ना. Yes, yes, I got it. ठीक है ना? तो ये, अच्छा यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि ये कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है? Static ये याद रखना भाई, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. स्टैटिक फ्रिक्शन की खासियत क्या है? इट इज variable. ऑटो एडजस्टिंग टिल, हेलो 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 हेलो, बोलो भाई, क्लियर है ना? ध्यान रखना ये चीज जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. तो और एक बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनाए जाते हैं, याद रखना. आई हैव मे बी आई मिस दिस पॉइंट. ये जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. तो एफ एक्टिंग जो है दैट इज एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर. मैक्सिमम वैल्यू रहेगा म्यू एम जी कॉस थीटा. हेलो, ये एम जी तो उड़ा दो. म्यू, कैन आई से शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना होना चाहिए? tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर. तो मिनिमम म्यू कितना जरूरत है? अरे भाई समझ आ रहा है क्या आप लोग को? हेलो, इतना मिनिमम म्यू की जरूरत रहेगी जमीन पर. अगर इतना म्यू नहीं है तो वो प्योर रोलिंग नहीं कर पाएगा. हेलो हेलो हेलो, यस और नो? तो म्यू मिनिमम इतना मांगता है जमीन के लिए, tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर. इफ इट इज नॉट देयर it will undergo impure rolling at every instant. It will undergo impure rolling at every instant. Getting it? Yes, हेलो, so ठीक है. तो इसी को हम लोग एक कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं ताकि आपको और समझ आए. देखो दो फर्क बताता हूं मैं, एक स्लाइडिंग में और एक प्योर रोलिंग में. प्योर रोलिंग मतलब एपीआर की. स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हम पढ़ चुके हैं. Can you tell me what are the velocity when it comes down? अंडर रूट 2gh, याद है ना? yes, sir. एक्सेलरेशन कितना रहेगा? G sin theta. और अगर फ्रिक्शन हुआ तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? G sin theta minus mu G. कॉस थीटा. ठीक है ना? ये अगर फ्रिक्शन हुआ तो, फ्रिक्शन हुआ तो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जी साइन थीटा ही रहेगा. पढ़ो. ठीक है. अच्छा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला एक्ट, अगर फ्रिक्शन हुआ तो.
ये सब चीजें एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में क्या होगा जो अभी हमने पढ़ा सब, ये वीसीएम, वीसीएम का फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद रहेगा, इट विल बी अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, याद रखना। acceleration of center of mass will become g sin theta upon 1 plus k square by r square, देखो ना 1 plus k square by r square से डिवाइड कर रहा हूँ। और friction required is mg sin theta upon 1 plus r square by k square, and mu minimum is tan theta upon 1 plus r square by k square। ये चीज सही है, क्लियर है? हेलो 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 हेलो, यस और नो? अभी आपके लिए लाइफ एकदम आसान हो गया, एपीआर का कोई भी समय आया तो आप कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सपोज मैंने ऊपर से इंक्लाइन प्लेन से रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर को छोड़ दिया, आई लीव इट, हु विल रीच द बॉटम फर्स्ट? हु विल रीच द बॉटम फर्स्ट? यस सर, भाई यस और नो? दे आर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है एंड फ्रिक्शन इज इनफ, हु विल रीच द बॉटम फर्स्ट? देखो ना, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा रहेगा वो जमीन पे सबसे पहले पहुंचेगा, यस और नो? Yes, sir. हेलो, तो जिसका एसीएम ज्यादा होना चाहिए, मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होना चाहिए ना। अरे भाई, इसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। इसका कितना होता है? हाफ होता है। इसका कितना होता है? 2/5। इसका कितना होता है? 2/3। सबसे कम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका है देखो जरा। Solid sphere. हाँ, तो कैन आई से जब चारों चीज को हम लोग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से छोड़ देंगे तो सॉलिड स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट एंड हु विल रीच द लास्ट? रिंग ना। Ring. अरे भाई, अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? तो एसएस विल रीच फर्स्ट, सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, एंड रिंग विल रीच लास्ट। एक simple language में I'm explaining. If you all have understood, then we'll go to the sums. I hope it has become clear only. Okay. And it will benefit if you go through the solved examples also. Introductory एकदम पक्का होना चाहिए. Okay. कोई भी चीज आपको बिल्ड करनी है, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. You cannot just start with difficult and hard sums and everything. आपको नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, you will okay not be able to do. फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, okay, you can think and do it. आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 12.10. चलो बाबा शुरू करते हैं. सॉरी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज ऑलवेज जीरो. बोलो सही है कि गलत है? अरे भाई, रोलिंग हो रहा है, अगर फ्रिक्शन आ रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन आ रहा है? अगर Static. फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है. एंड कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉटमोस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 0. जीरो. फ्रिक्शन तो आ रहा है, तो फ्रिक्शन इधर आ रहा है बट द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो ना. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मालूम है ना ये? हेलो, फॉर्मूला पता है क्या? Yes, sir. तो फोर्स तो आ ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो वर्क डन इज जीरो. याद रखना, वर्क डन इन प्योर रोलिंग इज ऑलवेज जीरो because the displacement of the point of contact where the application of force is there, okay, is zero. It doesn't displace itself with respect to ground. चाहे वो v जार ओमेगा हो या a जार अल्फा हो, दोनों पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा. yes or no? provided it is pure rolling. सही है ना? Fine. आगे बढ़ते हैं.
Question number 2. In a figure shown, force F is applied at the top of the disc. Find the maximum value of F so that no slipping takes place. Okay. चलो बाबा शुरू करते हैं. Find the maximum value of F so that no slipping takes place. अच्छा याद है फोर्स जब ऊपर आया था तो बेटा फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, अगर आपको याद रहेगा तो? mr square minus I upon mr square plus I into F. mr square minus I upon mr square plus I कैपिटल है. चलो भाई ये डिस्क है ना बॉडी, mr square minus mr square by 2 upon mr square plus mr square by 2. सही है क्या? हेलो बाबा, हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये कितना हो जाएगा जरा देखो. F by 3. ये हो जाएगा f/3 बराबर क्या? सही. ठीक है, ये कितना हो गया जरा देखो. f ये mr square by 2 mr square by 3, तो ये हो जाएगा f/3. ये फ्रिक्शन मिला मुझे. क्लियर? अब और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ. मतलब अगर ये मैक्सिमम है तो ये सामने वाला भी मैक्सिमम होना चाहिए. हेलो 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 बोलो. Yes, sir. व्हाट इज फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑन द ग्राउंड? म्यू एस एम जी ना. हेलो, म्यू एस एम जी, म्यू एम जी करेक्ट है क्या? Yes, sir. ये तो म्यू एस एम जी है ना. F maximum is going to become 3 mu s m. ये मिल गया. म्यू दिया है क्या? हेलो, इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू म्यू. यस, दिया रहेगा ना. यहाँ पे मेरे स्लाइड में नहीं दिया. इज इट गिवन इन योर बुक? इट शुड बी गिवन जी. यस सर. कितना दिया है? 0.6. 0.6. m दिया है 4 into 3 बराबर क्या? यस और नो सर? अच्छा ये फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि फोर्स इज अप्लाइड एट द टॉप. हाँ, ये हमेशा अप्लाई नहीं कर सकता है. This is only applicable when the force is applied at the top. And maximum चाहिए तो mu s m g ये भी maximum रहेगा and you will get the resultant answer. I hope you all have understood. कोई बड़ी बात नहीं है. Question number 3 पर आते हैं हम लोग. चलो question number 3. In a figure shown, solid sphere of mass same and radius r is placed on a rough surface. Find the minimum coefficient of friction. चलो बोलते जाओ formula. Minimum mu का formula क्या for rolling? Tan theta upon 1 plus r square by k square. तो tan 30 upon 1 plus सॉलिड स्फीयर का r स्क्वायर बाई k स्क्वायर क्या रहेगा? हेलो प्लीज आंसर. 5 by 2. 5/2 रहेगा. थर्टी इज 1/√3 और 7/2 ये मिला. म्यू मिनिमम आपको मिल गया. बी पॉइंट. ये बोल रहा है इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू मिनिमम, मतलब म्यू मिनिमम जितना चाहिए उससे ज्यादा है म्यू, तो बहुत अच्छा है ना भाई. हेलो
यार थ्रेशोल्ड कंडीशन से ज्यादा है ना, तो हाउ मच Yes. विल बी द एक्सेलरेशन? तो इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, एंड प्योर रोलिंग का एक्सेलरेशन ईसीएम का फॉर्मूला तो मालूम है ना सबको, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो जी साइन 30 अपॉन 1 प्लस 2/5, ये आंसर आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सी पॉइंट, इफ म्यू इज ग्रेटर देन, नहीं म्यू इज लेस देन म्यू मिनिमम बाय 2 रहेगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ऐसे ही दिया, देखो ना बुक के अंदर, देखो जरा, हेलो, लुक इनटू द बुक, या म्यू इज इक्वल टू पकड़ लो ना, चलो ना, इक्वल टू मिनिमम बाय 2, चलो इतना पकड़ लो। अब क्या होगा, अब क्या प्योर रोलिंग कर पाएगा? हेलो, हेलो, आप लोग आंसर दो बेटा, मुझे No, तो sir. आंसर पता है। म्यू, इट विल नॉट बी एबल टू डू प्योर रोलिंग ना यार, बिकॉज जितना मिनिमम मांगता है उसका आधा है। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देन? Hello, 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 yes or no? Because it Yes. will start slipping, na, this point will start slipping. यहाँ पर तो ये तो mg sin थीटा है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो आएगा वो म्यू mg cos थीटा रहेगा। तो उसके अंदर से अगर एक्सेलरेशन निकाले तो मास को ड्रॉप कर दो ना। हेलो, ये हो जाएगा क्या, g कॉमन sin 30 माइनस म्यू मिनिमम बाय 2 cos 30। डू यू अग्री विथ मी भाई, डू यू अग्री विथ मी, yes or no? हेलो, Yes, sir. yes or no, क्लियर है ना? तो यहाँ पर तो स्लिपिंग होगा, स्लिपिंग कंडीशन है। दिस इज एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग कंडीशन, ठीक है। सो मे बी क्वेश्चन नंबर 4, इसको रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a ball of mass and radius are released on a rough inclined plane of angle theta. Friction is not sufficient to prevent rolling. क्या भाई? Prevent slipping. The coefficient of friction is mu. Find the linear acceleration. चलो शुरू करो, बोलो कितना रहेगा? फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा ये बॉल का? G sin theta minus mu G cos theta. तो स्टैंडर्ड है माइनस म्यू जी कॉस थीटा, वेरी गुड बेटा, ये पहला पॉइंट मिल गया। बी पॉइंट, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कैन एनीवन टेल मी हु इज प्रोवाइडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन? mg sin थीटा तो नहीं प्रोवाइड करेगा ना। हेलो, और हमको मालूम है फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है, मगर फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगा रहा है, बिकॉज स्लीपिंग इज नॉट इनफ, फ्रिक्शन इज नॉट इनफ, फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगाएगा। तो हमको चाहिए कि जो अल्फा आने वाला है ना, वो कितना रहेगा? हेलो, सो कैन आई से टॉर्क इज आई अल्फा? टॉर्क कौन बना रहा है? फ्रिक्शन बना रहा है, दैट विल बी म्यू mg cos theta into r, I is I and alpha is alpha। और ये बॉल है, बॉल को सॉलिड स्फीयर अगर हम पकड़ते हैं तो अल्फा विल बिकम म्यू mg cos theta into r अपॉन I को लिख सकते हैं 2/5 mr स्क्वायर। हेलो, एक आर बार कैंसिल वैंसिल कर रहे हैं ना, आंसर आ जाएगा, यस और नो भाई, यस और नो? Yes, sir. mg sin थीटा तो टॉर्क प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है ना, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो टॉर्क इज आई अल्फा एंड टॉर्क इज f डॉट r, you will get the resultant answer. I hope you all are understanding, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, which is question number 5. A pool is being pulled. Pool.
एक्चुअली ये स्पूल होना चाहिए, पूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू नो व्हाट इज अ स्पूल? अरे भाई ये फिरकी देगा, फिरकी पतंग उड़ाने का। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये वही है। ओके, और यहाँ पर ये फोर्स लगाया मैंने, ये डायग्राम दिया हुआ है बुक के अंदर, ऐसे धागा है एंड ये अब कह रहा है कि भाई इसको है ना प्योर रोलिंग करवाना है, प्योर रोलिंग करवाना है। बोल रहा है फ्रिक्शन कहाँ आएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये फोर्स एसीएम बना पाएगा? सपोज मुझे एसीएम और आर अल्फा ऐसे मांगता है, एसीएम ऐसे चाहिए और अल्फा ऐसे चाहिए, बराबर है ना? हेलो, Yes. ये जो बड़ा वाला एफ है ये क्या बना पाएगा? क्या ये एसीएम बना पाएगा? नहीं बना पाएगा यार, एसीएम तो उस तरफ है ना, लेफ्ट की तरफ है। हेलो, तो ये सिर्फ अल्फा का काम करेगा? हेलो, अरे यार ये सिर्फ अल्फा का देगा ना? देखो ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर, यस और नो? Yes, sir. हेलो, तो फ्रिक्शन किधर आना चाहिए? आगे के लेफ्ट के राइट पे? Left. तो क्योंकि फ्रिक्शन एसीएम देगा ना, फ्रिक्शन विल गिव राइज टू दिस एसीएम ना, बिकॉज देयर इज नो वन टू प्रोवाइड एसीएम ना बाबा। ये फोर्स बोलेगा, ये जो बड़ा वाला एफ है ये बोलेगा भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अल्फा बनाने का। फ्रिक्शन बोलेगा मैं जिम्मेदारी लूंगा एसीएम बनाने का, और साथ में आई कंट्रीब्यूट टू अल्फा आल्सो। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आई थिंक सो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, यही पूछेगा फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में रहेगा, तो ऑब्वियसली इट इज देयर टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड इट डजंट लूज कांटेक्ट विद द ग्राउंड ऑब्वियसली। ठीक है, so this is how we do it. Accelerated pure rolling, major part, I think your 90% of rotational motion is done only. खाली थोड़ा पॉलिशिंग की जरूरत है, वो हम लोग अगले हफ्ते में, तो फ्राइडे को आई विल फिनिश ऑफ टॉपलिंग एंड व्हाट यार एंगुलर इंपल्स का दो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर देंगे, और ये आपका इंट्रोडक्टरी पूरा खत्म हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए आप लोग इंट्रोडक्टरी फिर से प्रैक्टिस कर लो एक बार, एंड देन नेक्स्ट वीक हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव खत्म करके रोटेशनल मोशन हमारा खत्म हो जाएगा देखते ही देखते। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Thank you. Bye, sir.